Good morning, everyone. Today we are going to study the geography first chapter of class 7 environment. What is environment? Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. The place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. The word environment comes from French word environner, which means neighborhood. Component of environment. There are three components of environment. First is natural environment, second is human environment, and third is human-made environment. Natural environment consists of hydrosphere, atmosphere, lithosphere, and living things, which is biosphere. Hydrosphere consists of the supremacy of water and the water life in it. Atmosphere consists of air mass which we breathe and which blow around us. Lithosphere, the solid part on which we made all the infrastructure development such as house, building, roads, etc. Biosphere means we all the living organisms on Earth, such as birds, animal, and humankind, are togetherly they made biosphere. Human environment, individual, family, community, religion, educational, economic, political situation. It means human environment. They make They make the environment around, such as the family member, their culture, their society. They develop the language, and they also make the sign of which the development is included. Individual means that human environment is made a separate family system. Means they have owned their life and they earn for their livelihood. Family, community, they together same community and same member of the family make a big community, whereas religion, educational, what we teach, what we study, what we learn is educational and economic, what we earn for our livelihood. And political situation, how we rule over a political area region according to which the society rule over. Human-made environment: building, parks, bridges, road, monument, industry, institution. These all are the human-made environment. It means that they human made the made the things by the help of natural nature and modify with the technical development, and they made for their convenience such as building parks, bridges, road, monument, industry, institution, etc. Natural environment: land, water, air, plants, and animal comprises the natural environment. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made of rocks and minerals and cover a thin layer of soil. Atmosphere: the atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. The domains of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. Plant and animal kingdom together make biosphere or living world. It is a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support life. Ecosystem: all plant, animal, and human beings depend on their intermediate
surrounding the relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding an ecosystem from a ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grass, ocean, and even a small pond. Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Humans learn new way to use and change environment. They learn to grow crop and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. A perfect balance is necessary between the nature and the human environment. Humans must learn, live, and use their environment in a harmonious way. जैसा कि अभी हम लोग ने देखा आज का चैप्टर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट उसको हम कहते हैं जो हमारे जीवन के आधार को सहायता प्रदान करती है। जैसे हमें अपने जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए और ज़मीन चाहिए जहाँ हम रहते हैं। तो ऐसे कहा जाए स्थान, लोग, प्रकृति जो हमारे चारों तरफ घूम घिरी हुई है और सभी जीवित जो है वस्तु मिलकर जो है क्या करते हैं, वातावरण या इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं। ये एक तरह से कहा जाए ये कॉम्बिनेशन होता है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के द्वारा निर्मित एक क्या है, आवरण है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट जो वर्ड आया है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से आया है जिसका मतलब होता है नेहाइबरहुड। इन्वायरमेंट के तीन मुख्य घटक हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट, मानव इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड मानव निर्मित इन्वायरमेंट। प्राकृतिक इन्वायरमेंट में हाइड्रोस्फीयर जिसमें कि जल की बहुतायतता वाले स्थान को जहाँ जो नदी है, तालाब है, इन सबको मिलाकर हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो कि हवा के बारे में है। लिथोस्फीयर जो कि जमीन जो उपलब्ध है, चाहे वो जंगल का एरिया हो या फिर पठारी हो या रेगिस्तानी ही क्यों ना हो। लिविंग थिंग बायोस्फीयर मतलब कि पेड़ पौधे, पक्षी सभी मिलकर जो है बायोस्फीयर को निर्माण करते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट ये अप्रत्यक्ष व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति दोनों ही निर्माण करते हैं। अगर एक व्यक्ति होगा कहीं भी तो वो क्या कर सकता है, वो अपने जिंदा रहने की सारी एक्टिविटी को करेगा। वो अपने फैमिली को निर्माण करेगा, फिर फैमिली से वो अपने समुदाय के लोगों का निर्माण करेगा, फिर धर्म का निर्माण करेगा, शिक्षा का प्रसार करेगा। अपने जीवन को जीने के लिए वो आर्थिक क्रियाकलाप भी कर सकता है और उस पर शासन भी कर सकता है जिस क्षेत्र पे वो रहता है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो कि मानव जो है रहने के लिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। उसमें बिल्डिंग है, पार्क्स है, रोड्स हैं, इंडस्ट्री है और संस्थानें भी हैं। प्राकृतिक इन्वायरमेंट हवा, पानी, ज़मीन, पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी जो है हम प्राकृतिक इन्वायरमेंट में रखते हैं। लिथोस्फीयर जो है वो हम सबसे मजबूत क्रस्ट के हिस्से के टॉप वाले लेयर को जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, कृषि क्रियाकलाप करते हैं, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। हवा के जो हमारे आवरण जो हमारे चारों तरफ हवा में हमारे आसपास में महसूस होती है हवाएं जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा वो कंबाइन हुई है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। साथ ही जहाँ पे बहुतायत किसकी हो, पानी की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और जिन जगहों पे पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी अगर मिले तो वो दोनों सब मिलकर एक बायोस्फीयर निर्माण करते हैं। यह एक बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र होता है। क्षेत्र क्या कहेंगे, एक सोच है जहाँ पे सभी हवा, जल, पानी, हवा, जल, पानी, जमीन जो है एक साथ मिलते हैं और जिंदगी को सपोर्ट करते, सहायता प्रदान करते हैं। इकोसिस्टम सभी पेड़ पौधे, जानवर, मानव यहाँ तक कि एक दूसरे पे निर्भर हैं।
ये अपने आस-पड़ोस पे पूरी तरीके से निर्भर है। इनके बीच जो है जीवित, अजीवित सभी तरह के चीज़ों के साथ संबंध होता है। ये जो है एक-दूसरे पे खाने से लेकर सभी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं। चाहे वो इकोसिस्टम जो है वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, जब तक कि सभी जीव एक साथ मिलकर नहीं रहते तब तक ये इकोसिस्टम बनता नहीं है। इकोसिस्टम जो है वो इतना बड़ा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र हो सकता है, यहाँ तक कि वो इतना छोटा भी हो सकता है कि एक छोटा-सा तालाब भी दिखाई पड़ सकता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे मानव जो है वो बहुत से प्राकृतिक एनवायरनमेंट से टकराया, उसके साथ में कुछ थोड़ा बहुत अपने आवश्यकता अनुसार उसमें चेंज करने की कोशिश किया, जैसे कि हमने गर्मियों के लिए एसी, कूलर वगैरह, फैन वगैरह बना के रखा है। ठंड के लिए हम हीटर वगैरह यूज़ करते हैं। इस तरह के कई तरह की चीज़ों को उसने मानव ने डेवलप किया और समय के साथ वो सीखता गया, अपने आप विकास करता गया और अपनी ज़िंदगी को इस धरती पे बनाया। कुछ ऐसे विकास भी थे जैसे कि उसने विकास किया, जैसे कि हम अगर देखें पहिए के आविष्कार से लेकर चाहे भोजन उत्पादन करना हो या एक औद्योगिक क्रांति ही क्यों न लाना हो, मानव ने जो है अपने वातावरण में परिवर्तन करके यहाँ पे विकास किया है। ज़रूरत है यहाँ पे एक सुव्यवस्थित संतुलन स्थापित करने का मानव और प्रकृति के बीच में। मानव को चाहिए यह सीखना कि वह वातावरण की तरफ से, एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें उसको प्राप्त हो रही हैं, उन सभी का वो उपयोग जो है सही तरीके से करे।